کی بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جعلی ادویات کا دھندا بے نقاب، انسانوں کے ساتھ جانوروں کے انجیکشن بھی ملاوٹ شدہ نکلے۔ ہڈیوں کی مشہور دوا اوسلیکس سے جعلی نکلی، کھانسی کے سیرپ اور ملٹی ویٹامنس کے مخصوص بیچ غیر معیاری نکلے، انجیکشن سینڈوفینگ بھی غیر معیاری۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ کی رپورٹ نے ہلا کر رکھ دیا، 5 غیر معیاری ادویات کے بیچ میڈیکل سٹور سے فوری ہٹانے کا حکم۔ لاہور میں جعلی ادویات کا دھندا بے نقاب، میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات فروخت ہونے لگیں، انسانوں کے ساتھ جانوروں کے انجیکشن بھی ملاوٹ شدہ نکلے۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ نے 5 ادویات جعلی اور غیر معیاری قرار دے دیں۔ ادویات کے مخصوص پیجز لیب ٹیسٹ میں جعلی اور غیر معیاری نکلے۔ رپورٹ کے مطابق ہڈیوں اور کیلشیم کی مخصوص ملٹی ویٹامن دوا اوسلیکس جعلی نکلی، کھانسی کا ایسیفل کف سیرپ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ نکلا، انجیکشن سیڈوفینگ بھی غیر معیاری، انجیکشن میں ذرات کی موجودگی پائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جانوروں کے 2 انجیکشنز بھی غیر معیاری پائے گئے۔ ادویات میں اصل اجزاء کی مقدار بھی معیار کے مطابق نہ پائی گئی۔ ویٹنری انجیکشن میکرائنز اور انجیکشن ورمیک غیر معیاری پایا گیا۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ نے غیر معیاری اور جعلی ادویات کا اسٹاک میڈیکل سٹور سے فوری ہٹانے کا حکم دے دیا۔ تیل کا بحران یا محض افواہ، مشرق وسطیٰ کی جنگ کا سایہ پاکستان پر پڑنے لگا، پیٹرول 40 ڈیزل 80 روپے مہنگا ہونے کا خطرہ، کیا ملک میں ایندھن کا طوفان آنے والا ہے؟ پیٹرولیم ڈیلرز کی ہنگامی پریس کانفرنس، آئل کمپنیوں کی بلیک میلنگ یا مصنوعی قلت، اوگرا اور ڈیلرز آمنے سامنے، حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، پیٹرول کی وافر مقدار موجود ہے، افواہوں پر کان نہ دھریں، اوگرا نے عوام کو اطمینان دلا دیا۔ تیل کا بحران یا محض افواہ، مشرق وسطیٰ کی جنگ کا سایہ پاکستان پر پڑنے لگا، پیٹرول 40 ڈیزل 80 روپے مہنگا ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لاہور پریس کلب میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، موجودہ صورتحال میں چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ڈیزل کی سپلائی صرف 20% پر آ گئی ہے، پیٹرول کی سپلائی بھی 50% کم کر دی گئی ہے۔ سینٹرل پنجاب صدر نعمان مجید نے کہا کہ پرائیویٹ کمپنیوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے۔ ملک میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا جو ہے خدشہ ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ آج یہاں پر جو ہے وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ملکی مسائل درپیش آ سکتے ہیں اس کو وقت سے پہلے ہی قابو کیا جائے۔ صدر لاہور جہاں زیب ملک نے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دی جائے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سپلائی روک دی ہے، حکومت پیٹرول پمپ چیک کرنے کی بجائے ان کے ڈپو دیکھے۔ حکومت نے سپلائی بحال نہ کی تو پیر سے پیٹرول پمپ بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سپلائی روک دی ہے۔ یہ جو آئل کمپنیز نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئل کمپنیز جو ہورڈنگ کی ہوئی ہے، آئل کمپنیز جو سٹاک اپنے بڑھائے ہوئے ہیں، جو وہ 15 تاریخ کا ویٹ کر رہی ہیں، اس سے پہلے جو پمپ مالکان کو مصیبتیں پڑیں گی، ہمیں خدا را اس چیز سے بچائے۔ ہماری یہ اپیل کہ یہ یا تو پھر حکومت اسٹیپ ان کرے، وہ جو سٹاکس رکھے ہوئے ہیں آئل کمپنیز نے اپنے ڈپوز میں، اس کو بالکل اوپن اپ کریں، جو تواتر سے پمپ مالکان کو جو سپلائی چاہیے وہ دیں۔ دوسری جانب اوگرا نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اوگرا حکام کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، افواہوں پر توجہ نہ دیں، پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری یا ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں 311 روڈ سائڈ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج پوائنٹس بنانے کی تجویز، تقریباً 68 ملین گیلن بارش کے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ شہری سیلاب سے بچاؤ کے لیے 181 کلومیٹر طویل سٹور روم واٹر ڈینز تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش، محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے پلان تیار کر لیا۔ سیلاب کے خطرات سے نمٹا جائے، بارش کے پانی کو مؤثر استعمال کے قابل بنایا جائے گا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں 311 روڈ سائڈ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج پوائنٹس تعمیر ہوں گے۔ روڈ سائڈ ٹینکس میں مجموعی طور پر 68 ملین گیلن بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ جامع منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق منصوبے کے تحت 181 کلومیٹر طویل سٹورم واٹر ڈرینز کی تعمیر بھی شامل ہے۔ بارش کے پانی کو سڑکوں، چھتوں اور گلیوں سے جمع کر کے زیر زمین محفوظ کیا جا سکے گا۔ منصوبے کے تحت جمع شدہ پانی کو ضرورت کے مطابق کنٹرولڈ طریقے سے خارج کیا جائے گا تاکہ شہری سیلاب کے خطرات میں کمی لائی جا سکے اور پانی کے بہتر انتظام کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ اس ذخیرہ شدہ پانی سے گراؤنڈ واٹر ریچارج کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاہور کے بعض علاقوں میں اس طرز کے ماڈلز پہلے سے موجود ہیں اور مجوزہ منصوبہ اربن فلڈنگ اور پانی کے زیادہ دونوں مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گا۔
सरकारी महकमों की निगरान फोर्स का बजट मंजूर। CMIT के लिए 98 करोड़ 84 लाख के बजट की मंजूरी। CMIT के दायरा-ए-कार में तोसी का प्लान भी मंजूर। 3 इलाकाई दफातर के क़याम और 124 नई असामियों की तख्लीक होगी। आलमी बैंक के ताउन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी रिपोर्ट भी तैयार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर 35 अरब 55 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। सरकारी महकमों की निगरानी के लिए बनाई गई फोर्स का बजट भी मंजूर कर लिया गया। CMIT के लिए 98 करोड़ 84 लाख के बजट की मंजूरी दे दी गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक CMIT मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 70 करोड़ रुपए था। मजमूई तौर पर 124 नई असामियों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा महकमाना कार्रवाई और निगरानी के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए 40 असिस्टेंट डायरेक्टर और हेडक्वार्टर्स के लिए मजीद 12 आसामियों का इजाफा किया गया है। हुकाम के मुताबिक CMIT अफसरान के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी भी दी गई। दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का नया मंसूबा तैयार कर लिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने आर्मी बैंक के ताउन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी देने पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए 5 साला सब्सिडी प्लान की वर्किंग मुकम्मल करके आर्मी बैंक के साथ शेयर कर दी। मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मजमूई तौर पर 35 अरब 55 करोड़ रुपए की हुकूमती सब्सिडी देने की तजवीज़ है। पुरानी गाड़ियों को मरहलावार खत्म करने के लिए स्क्रैच प्रोग्राम के तहत 18 अरब रुपए मुख्तस करने का इब्तदाई प्लान भी तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बेवफान और यतीमों के लिए रहमत कार्ड लाने का फैसला। सरकारी कफालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट का आगाज ईद के बाद होगा। बेवफान को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार मिलेंगे। बेवगान और यतीमों की सरकारी कफालत का शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया गया। बेवाओं और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया कि रहमत कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज ईद के फौरन बाद होगा। कार्ड के जरिए बेवफान को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार मिलेंगे। इजलास में मामून खुसूसी अशरो ज़कात राशिद नसरुल्लाह ने रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, हुकूमत कफालत करेगी। ईद उल फितर की तैयारियां शहरी फैमिली समेत बाजारों का रुख करने लगे। पैनोरामा सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ है। शहरी फैमिलीज के साथ ईद की खरीदारी में मगन है। दुकानदारों ने भी नई कलेक्शन और खसूसी डिस्काउंट ऑफर्स मुतारिफ करा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, ईद उल फितर के करीब आते ही शहर लाहौर के बाज़ारों में एक कंपटीशन सा शुरू हो गया है और रौनकें जिस तरह से बहाल हुई हैं। हर बाज़ार जो है वो ना सिर्फ इस दफ़ा रश से भरा हुआ है बल्कि हर बाज़ार को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया भी गया है। बरकी कुमकुमे दुकानों के ऊपर लगाए गए हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ ईद की खुशियां दोबाला हो रही हैं बल्कि शहर लाहौर की सड़कें और बाज़ार जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और इसी खूबसूरती की वजह से जो शहरी हैं वो ना सिर्फ शॉपिंग के लिए एक्साइटेड हैं बल्कि बाज़ारों पर रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। और इसी हवाले से पैनोरामा सेंटर भी शॉपिंग के लिए बहुत एक मकबूल जो है वो सेंटर है और इसी के हवाले से लोग यहाँ पर उनकी आमद का ताहाल सिलसिला जारी है। शहरी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और शॉपिंग की तैयारियाँ करने में मसरूफ़ हैं। जिस तरह से ईद करीब आ रही है, 15 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं और उसके बाद अब शहरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करें ताकि ईद को जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर की तैयारियां शहरियों के टेलर मास्टर की दुकानों पर डेरे। टेलर मास्टर दिन रात कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ हैं। रमज़ान के दूसरे अशरे में काम मज़ीद बढ़ जाता है। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के 15 रोज़े होते ही जो शहरी हैं उनकी जानिब से ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं उनका भी ज़ोरों शोर से आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से जो शहर के टेलर मास्टर्स हैं उनका भी सीज़न शुरू हो चुका है और उनकी दुकानों पर इस वक्त हमें गहमा गहमी देखने में मिल रही है। और जो टेलर मास्टर्स हैं वो लोगों के नाप लेने और उनके जो कपड़े हैं वो तैयार करने में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त टाउनशिप मेन बाज़ार में मौजूद एक टेलर मास्टर की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो लोगों के कपड़े सीने का काम है वो तेज़ी से जारी है जबकि लोगों के यहाँ नाप भी लिए जा रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आके अपने अपने सूट जो हैं वो दे रहे हैं ताकि वो ईद उल फितर की जो नमाज है वो नया सूट पहन कर करें। तो मास्टर साहब से बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि मास्टर साहब बताएँ 15 रोज़ों के बाद जो रश है उसमें इजाफा हो जाता है। ये 15 रमज़ान के बाद
अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश हो जाता है कि मेरे पास इतने कारीगर नहीं हैं कि जो मैं इनको पूरा कर सकूं। फिर भी मेरी हतल सी कोशिश है कि जहां जिसके 4 सूट है उसको मैं कम से कम 2 सूट तो लाजमन तैयार करके दूं ताकि वो ईद की नमाज से महरूम ना रह जाए। तो मास्टर साहब, ये अभी आपने बुकिंग बंद का बोर्ड नहीं लगाया, वो भी लग सकता है? बिल्कुल जी लग सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितनी कोशिश है कि खिदमत कर सकूँ अवाम की वो करूँ। हाँ जी बिल्कुल, मास्टर मियाँ शौकत साहब हैं जिनकी ये टाउनशिप मेन बाज़ार में टेलर की दुकान है, और इनका ये कहना है कि अमूमन 15 रोज़े के बाद जो बुकिंग बंद है का बोर्ड आमतौर पर टेलर हजरात लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं लगाया। और इनका ये कहना है कि मेरी ये कोशिश है कि ये बोर्ड ना ही लगाया जाए और लोगों की खिदमत के लिए ज़्यादा से बहुत शुक्रिया रोमिल इलियास अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के अहम इख्तियारात पर कुल्हाड़ा चलेगा। मुतादिद इख्तियारात इन्फोर्समेंट अफसर को मुंतकिल करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई और फैसलों के इख्तियारात तवीज़ करने की तजवीज़ से जांच पड़ताल, जुर्माने, रिकवरी, टैक्स नफास, ऑडिट के इख्तियारात भी मुंतकिल होंगे। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी एक कायमा कमेटी के हवाले तरमीम से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मजीद इख्तियारात भी मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुतअद्दिद इख्तियारात इन्फोर्समेंट ऑफिसर को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी एक्ट 2026 कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली के हवाले कर दिया गया। मुसवदा कानून के तहत पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में तरमीम की जाएंगी। एक्ट के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर का जांच पड़ताल का इख्तियार इन्फोर्समेंट ऑफिसर को तफवीज किया जाए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की जगह इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कानूनी कार्रवाई और फैसलों के इख्तियारात तफवीज करने की तजवीज दी गई है। मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर के बजाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जुर्माने और रिकवरी से मुताल्लिक कार्रवाई का इख्तियार दिया जाएगा, जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर को असिस्टेंट कमिश्नर के टैक्स निफास और ऑडिट के इख्तियारात भी मुंतकिल होंगे। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब में भर्ती 12,500 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स के लिए अच्छी खबर। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को तनख्वाहों की अदायगी का अमल शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का तीसरा मरहला, फेज 3 में 2,735 मजीद स्कूल ठेके पर देने का फैसला। लाहौर से 42 सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिया जाएगा। पंजाब भर में भर्ती 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स के लिए अच्छी खबर है। स्कूल टीचर इंटर्न्स को तनख्वाहों की अदायगी का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा खजाना ने STIs की तनख्वाहों के लिए बजट जारी किया। आरजी असातिज़ा को 4 माह से तनख्वाहों की अदायगियां नहीं की गई थी। एक हफ्ते में असातिज़ा के अकाउंट से तनख्वाहें मुंतकिल कर दी जाएंगी। महकमा खजाना की जानिब से आरजी असातिज़ा की सैलरी के लिए 1 अरब से ज्यादा का बजट जारी किया गया है। दूसरी जानिब सूबा भर में सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के तीसरे मरहले में महकमा स्कूल एजुकेशन ने तारीख में 7 रोज की तोसी दे दी। फेज 3 में 2,735 मजीद स्कूल ठेके पर देने का फैसला किया गया। लाहौर भर से 42 सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिया जाएगा। पहले 2 मराहिल में 10,000 सरकारी स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा चुके हैं। अब मजीद हजारों स्कूल पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। प्राइवेट शोबे, NGOs और एडटेक इदारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल मुकर्रर की गई है। दहशतगर्दी के खदशात से और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी 162 स्कूल A+, 4,149 A जबकि 33,700 स्कूल B कैटेगरी में शामिल। 74 कॉलेजेस A और 2,969 B कैटेगरी में रखे गए। 73 यूनिवर्सिटीज़ का भी सिक्योरिटी कैटेगरी में शुमार। 700 तालीमी इदारों में पुलिस CTD की मुश्तरका मशकें की गईं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों की सिक्योरिटी का तफसीली ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार, इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की 73 यूनिवर्सिटीज़ को सिक्योरिटी के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया। 74 कॉलेजेस है और 2,669 कॉलेजेस B कैटेगरी में शामिल किए गए। इसी तरह 162 स्कूलों को A+, 4,149 को A जबकि 33,700 स्कूलों को B कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट में बताया कि तमाम तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी SOPs तश्कील देकर उन पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया। इस सिलसिले में 162 तालीमी इदारों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मॉक एक्सरसाइज, जबकि 700 तालीमी इदारों में पुलिस और CTD की मुश्तरका मशकें भी की जा चुकी हैं। तालीमी इदारों की बाउंड्री वॉल्स, खारदार तारों और क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब का रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,45,902 असातिज़ा ने पब्लिक सेफ्टी ऐप का पैनिक बटन डाउनलोड कर लिया है। गुज़श्ता साल 14 दिसंबर से अब तक 34,269 रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में सेफ्टी ऐप इंस्टॉल की जा चुकी है। कोट लखपत फ्लाईओवर फिरोजपुर रोड की रोड लाइट्स एक अरसे से नाकारा। खराब रोड लाइट्स के बायस फ्लाईओवर तारीकी में डूब गया। मसरूफ तरीन फ्लाईओवर पर अंधेरे होने के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। तफसीला जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। जी, कोट लखपत फ्लाईओवर की रोड लाइट्स अरसा दराज से बंद पड़ी हैं।
फ्लाई ओवर से पीको रोड की तरफ उतरने वाला जो रास्ता है उसकी भी यही कहानी है। पूरा का पूरा जो फ्लाई ओवर है वो तारीकी में डूबा हुआ दिखाई देता है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मेन चारा है, लाखों गाड़ियों की गुजरगाह है। हादसात का खदशा यहाँ पर ब्रिज पर तारीकी होने के बायस हर वक्त यहाँ पर मंडलाता रहता है। शहरियों का कहना यह है कि इंतज़ामी नाअहली के बायस जो रोड लाइट्स हैं वो खतीर बजट से जो लगने वाली रोड लाइट्स हैं वो अरसा दराज से बंद पड़ी हैं। उनकी जानिब से जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है कई बार उससे शिकायत की गई हैं कि रोड लाइट्स को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि यहाँ पर जो सफ़र है वो आसान हो सके, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद ये मसला जूं का त्यों मौजूद है। उनका यही मुतालबा है कि इन रोड लाइट्स को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि यहाँ पर जो आमदोरफ्त है उसमें आसानी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। पंजाब सोसाइटी में यूनियन रेंटेकार के अहदेदारों ने पुलिस की मुबैन नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने चौकी इंचार्ज इमरान असर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि वाक़े को 72 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल FIR दर्ज नहीं की गई। साथ मिलकर तशद्दुद कर रहे हैं, हमारे साथ आके हमारे ऑफिस के शीशे भी तड़वाए हैं और हमारी गाड़ी का भी नुकसान किया है। हमने 15 की कॉल की है, इधर ये रेंट वालों के पास बैठ के पनाह लेते हैं, सारा दिन सारी रात उनके पास बैठते हैं। 15 की कॉलें भी हमने की है, हमारी 15 की कॉल करने के बावजूद वो दूसरी पार्टी के साथ आए हैं, उन्होंने आगे हमारी गाड़ी का भी नुकसान किया है और हमारे ऑफिस का भी नुकसान किया है, काफ़ी शीशे शूशे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम की जारी तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया। शाफी हुसैन ने कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत हैसिक हाउस में इजलास हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरानी कौंसलेट आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब समेत दीगर शख्सियात ने कौंसल जनरल ईरान से ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ईरानी कौंसलेट ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ईरानी कौंसल खाने आए। उनके हमरा पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी भी थे। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल मेहरान मुआहिद फर से मुलाकात की। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर इज़हार ताज़ियत और फातह खानी की। गवर्नर पंजाब ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुज़ाकरात की आड़ में ईरान पर जारियत काबिल मुज़म्मत है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अपना मुज़ाकरात की आड़ में मुज़ाकरात हो रहे थे, उनको किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचने के बाद जो फैसला होता वो फिर एक अलहदा बात थी, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पे जो है वो हमला कर दिया गया, जो एक सरासर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं ईरान के साथ हैं, ईरानी कौम खड़ी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ईमान पे इंशाअल्लाह आखिरी कामयाबी ईरान की होगी और इसराइल जो है वो इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद होगा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत के लिए शिया उलमा कौंसिल का वफ्द भी आया। खुर्म नवाज गंडापुर की सरबराही में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का वफ्द भी ताज़ियत के लिए आया और ईरानी कौम के साथ यकजहती का पैगाम दिया। हाजिर हुए थे ताज़ियत करने के लिए और ये यकीन दहानी कराने के लिए कि इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा एक है और हमेशा रहेगी। जो ताकतें हैं, सिहूनी हैं या और ताकतें जितनी भी कोशिश कर लें, हमको जुदा नहीं कर सकती, हमको हमारा शिराजा नहीं बिखेर सकती। दारोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के वफ्द ने भी ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुआहिद फर से मुलाकात की। वफद ने शोहदा के लिए फातह ख्वानी और दुआ की। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने लक्ष्मी चौक में बारिशी पानी को महफूज करने वाले दयाल सिंह कॉलेज ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। दूसरी तरफ चले जाए वेडन रोड, इसका इनकैचमेंट एरिया जो हाजी कैंप और वहाँ से लेके ऑनवर्ड सारे का सारा इनकैचमेंट एरिया है। और हम जब गेज करते हैं तो मुझे MD साहब गुफरान साहब बता रहे थे अगर ये लक्ष्मी चौक ड्राई है तो आप समझें कि पूरा लाहौर ड्राई है। तो इसके लिए हमारी वर्किंग थी, मौजूद थी। उसको आज बड़ी खुशी के साथ रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में अपनी लीडरशिप मरियम नवाज शरीफ साहबा के बिहाफ पे मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हम इस जगह पे जो लाहौर के जो बड़े जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बने हैं उनमें से
صوبائی وزیر تعلیم نے یتامہ کے عالم دن کی مناسبت سے یتیم بچوں میں تحائف تقسیم کیے، بچوں کے ساتھ افطار کیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ رانا سکندر حیات کہتے ہیں یتامہ کی ضروریات پوری کرنا سماجی ذمہ داری اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت سے بہتر کوئی عمل نہیں، حقوق العباد کی معافی نہیں۔ وزیر تعلیم نے یتامہ کی کفالت اور حقوق کی ادائیگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج کا دن یتامہ کو باوقار مستقبل دینے کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کلب کرکٹ آرگنائزر کے اعزاز میں یو پرنس کرکٹ کلب کے صدر واصف زمان کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ گلبرگ میں منعقدہ تقریب کی میزبانی کرکٹ آرگنائزر عامر الیاس بٹ اور میاں سعید نے کی۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ زون کے صدر کلب کے قریب کلب صدور شریک ہوئے۔ اس موقع پر معیز غنی، ایزڈ سید، سابق کپتان سلمان بٹ، میاں عامر جاوید، سردار نوشاد اور دیگر شریک ہوئے۔ یتامہ کے عالم دن کی مناسبت سے دارالشفقت انجمن حمایت اسلام میں زیر کفالت بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور یتیم بچوں کے ساتھ افطار کیا۔ چیئرمین دارالشفقت انجمن حمایت اسلام سہیل محمود بٹ، صدر جسٹس ریٹائرڈ رستم علی ملک، سیکرٹری سید طیب حسین رضوی، سینئر نائب صدر ڈاکٹر شوکت علی اور مدثر لطیف راں سمیت دیگر سماجی اور کاروباری شخصیات نے افطار ڈنر میں شرکت کی اور زیر کفالت بچوں کے ہمراہ افطار کیا۔ سہیل محمود بٹ نے کہا کہ دارالشفقت انجمن حمایت اسلام گزشتہ کئی دہائیوں سے یتیم بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایسے بچوں کو محبت، توجہ اور بہتر مواقع فراہم کر کے انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی سعادت ہے کہ ہمیں 200 بچوں کا کفالت جو ہے یہاں ہم دارالشفقت میں کر رہے ہیں۔ آج ان کی ہم نے افطاری کا بھی انتظام کیا ہے اور پوری ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے جو اس ادارے کو چلاتی ہے اور اس ادارے کے ساتھ ساتھ 18 ادارے جو ہے وہ اس آرگنائزیشن نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص ہمارے پہ مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ کام کر سکیں، اپنے حصے میں وہ ثواب اکٹھا کر سکے۔ اور میں آپ سب کو بھی ویلکم کہوں گا، آپ جب بھی آنا چاہیں آپ آئیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ان کی ٹیوشن کلاسز میں جائیں، ان کے صبح اسکول کا دیکھیں۔ شرکاء نے مخیر حضرات اور کاروباری طبقے سے اپیل کی کہ وہ یتیم بچوں کی کفالت کے اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو بہتر تعلیم اور سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے پاکستان زندہ باد افطار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے پاکستان زندہ باد افطار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ افطار ڈنر میں مرکزی مسلم لیگ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری خالد نیک گجر، جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، حافظ اشفاق، زاہد ہاشمی، شیخ عرفان شریک ہوئے۔ پاکستان میں ہماری مسلح افواج، ہمارے اس وقت جو افواج کے سربراہان ہیں، خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان سب کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو ہمارا دشمن اس وقت قوم اور ہماری جو فوج ہے اس کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بڑا کام کر رہا ہے۔ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ احباب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو صحیح چہرہ ہے حالات کا وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں اور قوم کو یہ بات کہیں کہ ساری قوم کو اس وقت سبز حلالی پرچم کے نیچے جمع ہونا ہے۔ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، مسلم امہ نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم مار بھی کھا رہے ہیں، دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو جتنی پاور ہمارے میں ہے الحمدللہ اس پوری دنیا میں اپنا راج کر سکتے ہیں۔ کاروباری سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو ملنے والی عزت، استحکام اور کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صدر چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل بھی تقریب کا حصہ بنے۔ پاکستان ہے تو ہمارے بزنسز ہیں، پاکستان ہے تو ہماری فیکٹریاں ہیں۔ اس کی بقا کے لیے آپ یقین کریں پہلے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم ٹیکسز دیں۔ لاہور چیمبر ریپرزینٹ کرتا ہے 46,000 ممبر کو جو کہ ٹیکس پیئر ہیں۔ تقریب میں پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔
जौहर टाउन खैबान जिना रोड पर मास्टर बिरयानी की 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। ग्रैंड ओपनिंग में मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनके लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में सीईओ मास्टर बिरयानी चौधरी जफर इकबाल, चौधरी अमीर खान, जफर मिनहास, चौधरी मतलूब जफर, चौधरी हमजा जफर, चौधरी एहसन जफर, दानियाल मिनहास और हारिस मिनहास ने शिरकत की। एडिशनल IG तारिक अब्बास कुरैशी, पार्लियामानी सेक्रेटरी चौधरी कामरान, मेंबर प्रेस कंट्रोल कमेटी चौधरी नक्काश और दीगर मौजूद थे। रावी में कायम रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल में सर्जिकल टावर के जदीद एमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक शेख आबिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की। सदर रियाज मंसूर ट्रस्ट मोहम्मद नफीस और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। शेख आबिद महमूद ने रियाज मंसूर ट्रस्ट हॉस्पिटल में जदीद एमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। थैलेसीमिया के बच्चों की इयादत की और इनमें तोहफे भी तकसीम किए। चेयरमैन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक शेख आबिद महमूद का कहना था, जदीद तिब्बी सहूलियात की फरहमी वक्त की अहम जरूरत है। रियाज मंसूर ट्रस्ट की ये काविश काबिले सताइश है। ये बहुत बड़ी खिदमत है। मैं समझता हूँ कि लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है जो कि थैलेसीमिया के बच्चों की खिदमत कर रहा है। और उसके बाद अभी ये जो सर्जिकल टावर रियाज मंसूर सर्जिकल टावर बना है, देख के दिल खुश हो गया है। कहीं भी एक तो सबसे पहले कि पर्पस बिल्डिंग है और ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने बनाई है और कोई चीज़ भी यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। हर चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक और SOPs के मुताबिक है। इदारे के सदर मोहम्मद नफीस ने बताया कि एमरजेंसी वार्ड्स का क़याम सर्जिकल टावर मंसूबे का एक अहम संग मील है, जिसका मकसद मुस्तहिक और नादर मरीजों को फौरी और मियारी तिब्बी सहूलत की फरहमी यकीनी बनाना है। बुनियाद भी इन्होंने रखी थी शेख आबिद महमूद साहब ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ईंट 4 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बड़ा हॉस्पिटल बन चुकी है और इसमें जितने भी शोबे शुरू किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। और जैसे कि इन्होंने अभी भी बताया कि किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तमाम इक्विपमेंट इंपोर्टेड मंगवाया गया, ब्रांड न्यू मंगवाया गया है ताकि गरीब लोगों को भी वो सहूलियत दी जा सकें जो किसी भी बड़े प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें मैसर होती हैं। रियाज मंसूर ट्रस्ट हॉस्पिटल में जदीद एमरजेंसी वार्ड के क़याम से शहरियों को बेहतर और बर वक्त तिब्बी सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। जदीद तिब्बी आलात, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और तरबियत याफ्ता मेडिकल टीम के साथ ये वार्ड 24 घंटे हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। रियाज मंसूर ट्रस्ट थैलेसीमिया और होमोफीलिया के मरीजों को भी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया खोरोनोश की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मुल्तान रोड सब्जी मंडी, सब्जाजार और इकबाल टाउन के सोलर स्टॉल्स का तफसीली दौरा किया। जी अभी हमने सहूलत बाज़ार सब्ज़ादार का विज़िट किया है। यहाँ पे जो फलों के, सब्जियों के, चीनी के और आटा के जो रेट्स नोटिफाइड हैं सहूलत बाज़ार के, उनको मॉनिटर किया गया है और किसी किस्म की कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं मिली। बाकायदा जो फीडबैक है वो कस्टमर से लिया जाता है और अगर कोई पब्लिक कंप्लेंट हमें यहाँ पे रिसीव हो तो सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद ने गुलशन रावी के सहूलत ओंदीगो बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने अशिया खुरोनोश की सप्लाई और मयार का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर किरण खुर्शीद ने कहा कि अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए बाकायदा शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। जो भी दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर फौरी जुर्माना आयद किया जाएगा। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि सहूलत बाजार में DC रेट से भी कम कीमत पर अशिया ज़रूरिया फराम की जा रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुल्क के मारूफ तजियाकारों और माहिरीन ने शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के मौजू पर मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी, इसके तारीखी पस मंज़र और मुस्तक़बिल पर मुमकिना असरात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कैंप का ऐलान कर दिया गया। इर्तिज़ा कमैल को टीम का नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम का तरबेती कैंप 6 मार्च से कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगाया जाएगा, जहां PCB की जानिब से सीरीज़ के लिए टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया गया। इर्तिज़ा कमैल को टीम का नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया है। दीगर स्टाफ में माइक हसन हेड कोच, एशले नॉफकी बॉलिंग कोच, जबकि शेन मेट्रोडमोट फील्डिंग कोच होंगे। रमज़ान मुबारक में किन्नू, मौसमी और पुदीने के ताज़ा जूस की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि रोज़ादार अफ्तार के वक्त प्यास बुझाने और ताजगी हासिल करने के लिए कुदरती मशरूबात को तरजीह दे रहे हैं।
किन्नू मौसमी और पुदीने का जूस माह रमजान में शहरियों के लिए नेमत बन गया। अफ्तार के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम जूस कार्नर्स पर मौसमी, किन्नू और पुदीने का जूस पीने वालों का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि रोजा रखने के बाद जिस्म में पानी और तवानाई की कमी महसूस होती है, जिसे पूरा करने के लिए किन्नू मौसमी और पुदीने का जूस बेहतरीन इंतखाब है। विटामिन सी से भरपूर ये कुदरती जूस न सिर्फ जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है, बल्कि गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने में भी मददगार साबित होता है। बहुत अच्छा जूस है पिया। हम बरकत मार्केट में आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो इफ्तारी के बाद हमेशा ही हम ये जूस पीते हैं। मौसमी का जूस बहुत अच्छा होता है। जूस फरोशों के मुताबिक माह रमजान में किन्नू मौसमी और पुदीने के जूस की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। किन्नू मौसमी और पुदीने का जूस जिस्म में पानी की कमी दूर करने का बेहतरीन जरिया है और इसके इस्तेमाल से ताजगी और फरहत का एहसास होता है। तिबी माहिरीन ने भी कुदरती जूस को सेहत के लिए मुफीद करार दिया है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन और मादनियात जिस्म की तवानाई बहाल करने में मदद देते हैं। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। गुलबर्ग में एम आलम रोड पर फिल्म दिल्ली गेट के लिए बीटेप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन मद्दी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। आए लाहौर आके यहाँ पे लाहौर में दिल्ली गेट फिल्म बनाई, यासिर खान जिसका मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यासिर साहब? कनाडा से आके यहाँ पे दिल्ली गेट बनाई। हाँ, कनाडा से आके दिल्ली गेट बनाई क्योंकि एक पैशन भी था और इंडस्ट्री हमारी है ही पाकिस्तान के अंदर, और जहाँ पे अमेरिका कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया चल रहा है, तो कनाडा के अंदर वो नहीं थी इंडस्ट्री। तो मेरा आना यहाँ जरूरी था क्योंकि इधर आने के बाद ही फिर मुझे क्या नाम है, मैंने दिल्ली गेट शुरू की। उससे पहले मैंने सैयद नूर साहब के साथ बाई वन फिल्म में काम किया, जी सर उठाकी के अंदर सरदार का कैरेक्टर किया। फिर उसके बाद फाइनली हमने एक दिल्ली गेट लिखी और फिर मोहम्मद कमाल पाशा साहब ने, जो यहाँ पर अब इस दुनिया में नहीं है, साहब आए, तो नदीम भाई के साथ तब मेरी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, तो मुझे बड़ा पसंद आया। तो उसके बाद हमने जी फिल्म के डायरेक्टर नदीम चीना भी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली गेट ईद उल फितर पे जो है वो रिलीज हो रही है। कितना प्यारा लाहौर से, जैसे कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर ने देखा और जमिया नहीं, इसी तरीके से हमारे दिल में, हमारी रूह में अंदरून लाहौर का वो जो कल्चर छाया हुआ है, एटमॉस्फेयर वो जो हमारे अंदर था, उसको मैं दिखाना चाह रहा था दुनिया को। यासर भाई ने साथ दिया। इनको जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाया, मैंने कहा यार यासर भाई मेरे पास स्क्रिप्ट है अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फिल्म है। जब इनको सुनाया, कहले यार नदीम भाई बजट तो नहीं है, पैसे नहीं है, पर बनानी है यार। जब इन्होंने एक सोच लिया, एक इरादा कर लिया, तो अल्लाह ने फिर बरकत डाली। कुछ लोगों का ख्याल था, आज यासर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यार दिल्ली गेट फिल्म लेट क्यों होगी, तो मुझे कहने लगे यार नदीम भाई दिल्ली गेट बरसों बीत गए हैं, सदियां बीत गई, आज भी वही कल्चर, वही तौरतवार, खेल तमाशे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मद्दी अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त